Actually, he beats up Thanos. He beats really up Thanos badly. very. So Doomsday का ये आ चुका है कास्ट. Okay. उसमें थोर है, उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज. So डॉक्टर स्ट्रेंज is planning to come with Spider-Man and Hulk together. So अभी क्या है कि all teams are coming together. So they are making Doctor Doom that powerful. उसमें डॉक्टर डूम ने इसको मारा है, गैलेक्टस को. हेलो ऑल, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ गीक सबा. यहाँ पे हम बात करेंगे बहुत सारे कॉमिक्स के बारे में, डीसी के बारे में, मार्वल के बारे में. नॉट ओनली दैट, हम सीरीज के बारे में बात करेंगे, मूवीज के बारे में बात करेंगे, हैरी पॉटर के बारे में बात करेंगे, टर्मिनेटर के बारे में बात करेंगे. से बहुत सारे जो गीकी चीजें हैं हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. मैं इन सब का बहुत बड़ा फैन हूँ और हमारे साथ जो भी गेस्ट आएंगे वो भी इन सब के बारे में बहुत फैन या फॉलोअर्स होंगे इसका. सो ये पहला एपिसोड है. यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मार्वल के बारे में एंड मार्वल सागा के बारे में, प्लस अ बिट ऑफ डीसी एंड द मैजिक ऑफ हाउ मार्वल एंड डीसी वर्क्स. सो वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ गीक सबा. Hey Akhil, welcome to the podcast. This is Thank you. Episode 1 of the Geek Sabha. Nice. So yeah, well, Akhil. So like, what do you want to say? Ki why you call yourself a geek? या फिर तुझे इतना comics क्यों पसंद है? Like, what is the history? Actually, I think a bit of it. Like you can't generally say for some history or something. एक point नहीं होता, right? And I think बचपन से है used to read a lot of these picture books and stuff like that. When like when you start picking up reading, you start with these picture books and stuff like that, and Tinkle and all of those stuff. But actually, my dad was a comic fan. Oh. Yeah, so apparently he was a big fan of this Phantom and Mandrake. Oh. So he used to go every day to like the Trishur this thing, and then he used to read the newspaper there, which would have like strips, and he used to follow for a long time of the story. So I also had like second-hand copies of some of the Phantom or Uska work. So when I first picked up some of these books, I remember like starting like a very young age, like 4th standard something, Vesa. So that was there, and obviously like over time, like all these animated, I think the animated shows were the one that really pulled me into the whole thing. कौन सा था पहला? I remember, I don't remember the first one. X-Men, I remember. X-Men was really fun. Batman के animated series was really good. तो वो सब थोड़ा बहुत याद है मुझे. I think mostly that actually. X-Men I remember, and I remember. Teen Titans I remember. Teen Titans. Right, Teen Titans was really good. DC के, and what else was there? There were all these Fantastic Four, and Spider-Man was there, but I don't know why I didn't get into Spider-Man that much. But X-Men and all of those things were pretty good. So one more thing. So हमारे बचपन में I have seen that कि कॉमिक बुक्स अवेलेबल नहीं था. मेरे को तो मिला ही नहीं था कहीं पे भी. मुझे इंटरेस्ट था भी, बट इट वाज नॉट देयर. एक्चुअली आई डिडंट नो कि कॉमिक बुक एग्जिस्ट भी करता है, क्योंकि मेरे लिए टीवी ही सोर्स था कॉमिक्स का पूरा. हमारे बचपन में कॉमिक्स था नहीं. जो था वो था चंपक, टिंकल एंड ऑल, और उसके चाचा चौधरी, शिकारी शंभू एंड वो. तो वहां से तो अट्रैक्ट हो ही गया था कॉमिक्स. एंड द थिंग इज इमेजिनेशन. मतलब जो तुम टीवी पे नहीं दिखा सकते, वो बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि ऐसा भी कर सकते हैं. उस टाइम पे ऑफ कोर्स वीएफएक्स, सीजी कुछ था नहीं, तो इतना एक्सपोजर नहीं था जितना तुम्हारे कॉमिक्स में मिलता है. बट जब टीवी में आया एनिमेटेड, लाइक मेरा पहला था ये टीन टाइटंस था एंड एक्समैन था. ये दोनों ही थे जो मैं देखता था. एंड देन बैटमैन केम अलोंग, उसके बाद आया था. स्पाइडरमैन भी था, बट ऑफ कोर्स उस टाइम पे मुझे पता नहीं क्या मार्वल क्या डीसी, आई हैड नो आइडिया. इट वाज जस्ट फैसिनेटिंग डिटेक्टिव टाइप था, सॉल्विंग. Actually, I have this thing to share. उसमें I would say I remember it so old. मतलब हम लोग जब यंग थे तब देखते थे बैटमैन वगैरह. वो टाइम पे मेरे मॉम और वो सब चिट्ठी लिखा करते थे. एंड आई रिमेम्बर मेरे कजिन और मैं बैटमैन के बारे में चिट्ठी में बात के, मतलब मम्मी का जो एंडिंग में बोलती है ना, अच्छा कुछ और बोलना है क्या, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू से टू राहुल और समबडी एल्स, लाइक वन ऑफ माय कजिन्स. सो लाइक वो डिड यू वॉच द न्यू बैटमैन का समथिंग, लाइक आपने मतलब ये वाला देखा क्या नया बैटमैन. सो चिट्ठी के नीचे एक लाइन भी लिखवाते थे. तो इट इज वेरी वियर्ड कि हम लोग बैटमैन चिट्ठी में लिख के एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे. करेक्ट. बट हाँ वही, मतलब वो टाइम पे यार वो कितना एक्सेस मिलता था, बैरली, जो भी आपने को पता भी नहीं है कुछ भी, एंड वी जस्ट पिक अप ऑन समथिंग. करेक्ट.
What about you, Jitu? मेरा तो बचपन में इतना था नहीं, मैं बचपन में सब देखे थे स्पाइडरमैन और उसे जैसे चाचा चौधरी, बट एक्चुअल जो मूवीज का स्टार्ट हुआ मास्टर्स में वो भी अखिल ने स्टार्ट करवाया। फर्स्ट मूवी बैटमैन थी, डार्क नाइट, अखिल ने बोला देख ये क्रिस्टोफर नॉलन। क्रिस्टोफर नॉलन ओह ओके। मतलब वो एक्चुअल पता चला मार्वल डीसी पूरा, फिर एक्चुअल जो हुआ फिर फ्रेंड्स के साथ ही हुआ, तूने पूरा डिटेल में बताया कि कॉमिक्स एंड तब से फिर जर्नी स्टार्ट हुआ एंड अभी भी जान रहा हूँ तुम लोगों के साथ। सो होपफुली मेरे साथ बहुत लोग होंगे पॉडकास्ट में जो सीखेंगे। सो या तो अखिल, सो कब तेरा एक्सपोजर हुआ एक्चुअल लाइक डीसी मार्वल कॉमिक से, कॉमिक बुक से, और वाज इट लाइक ई बुक? क्योंकि मैंने तो ई बुक पढ़ा था सबसे पहले, कॉमिक का एक्सेस नहीं था, मैं लैपटॉप में बैठ के पढ़ रहा था। सो हाउ वाज योर एक्सपोजर, कहाँ पे कैसे हुआ था एंड एवरीथिंग? आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक समथिंग लाइक दैट, बट आई आल्सो, मुझे याद है मुझे कॉमिक्स मिला था। मुझे मिला था फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो अपने ब्रिटिश लाइब्रेरी में मेरा ये था। ओह नाइस। राइट, एंड देयर मतलब वी यूज्ड टू गेट सम कॉमिक्स देयर, एंड आल्सो सेकंड हैंड में देर फटे हुए पेजेस के साथ मैंने पढ़ा हुआ है। सो आई रिमेम्बर कि मुझे मिला है। इट माइट नॉट बी लाइक, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत पढ़ा है। देन आफ्टर दैट लॉट ऑफ दैट स्टफ आई रेड इट इन जस्ट एज यू सेड लाइक टॉरेंट से, टॉरेंट डाउनलोड करके, ईपब और वो सब में, राइट। तो वैसा पढ़ा है मैंने, बट जनरली मैंने फिजिकल कॉमिक्स भी पढ़े हैं, एंड आई रिमेम्बर लाइक सेकंड हैंड में मिले हैं मुझे, एंड अनएक्सपेक्टेडली मिले हैं। ऐसा भी नहीं कि मैं गया ये चूज करने के लिए, बट मैंने देखा ओके वाओ यहाँ पे। व्हाट वाज योर फर्स्ट कॉमिक्स, क्या याद है? वो याद नहीं मुझे, आई डोंट रिमेम्बर, आई रियली डोंट रिमेम्बर। और समथिंग दैट यू स्टिल रिमेम्बर कि लाइक अरे ये मैंने तब पढ़ा था एंड इट वाज वेरी गुड। आई डोंट रिमेम्बर, दैट्स अ प्रॉब्लम, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। आई घर पे था वो याद है मुझे, क्योंकि फैंटम और ये सब मैंने, मुझे कॉमिक का जो पन्ना है वैसा याद है, तो बट आई डोंट रिमेम्बर दिस वन बिकॉज इट्स नॉट एज कॉमनली मुझे नहीं मिला था। बट बैटमैन मैंने पढ़ा है थोड़े, आई थिंक बैटमैन के मैंने थोड़े ये पढ़े स्टार्टिंग में। आई थिंक इनिशियली थोड़े कॉमिक्स में मैंने ज्यादा बैटमैन पढ़ा था। आई थिंक बैटमैन और बैटमैन ओनली प्राइमरली इन डीसी, दैट वाज द थिंग। To be honest, Marvel में I didn't read. Spider-Man comics were there, and but I never had any Captain America comics, or I have not read any of those either. Like that I only started reading a bit later. College. हाँ, maybe college or something like that. And also I think it started like games वगैरह आने लग गए थे, and I used to play a little bit of games here and there. So I remember Wolverine के games. Oh, there's an old Wolverine game that is really good. So that is where I learned about Sabretooth and all of those guys before these movies sort of came out. Okay. Right. And obviously we also had the movies. So वो time पे movies भी थे तो I guess 2000 से तो movies का काफी inspiration रहा है, especially 2008 जब से X-Men आया है। X-Men का 2008 ही था ना पहला मूवी, 2006 और 8 I think so. But also we had Spider-Man शायद। Spider-Man 2003 right? और Fantastic Four भी 2004 या 3 में ही आया था, उस टाइम पे आया था पहला वाला Fantastic Four, तब उस टाइम पे आया था। I remember 2008 was a very good point क्योंकि उस टाइम पे आयरन मैन आया था एंड एक्समैन का भी उनका पहला मूवी, दोनों बड़े मूवीज आए थे जो कॉमिक को काफी एक्सपोजर मिला, एंड बैटमैन भी आया था। 3 बड़े मूवी आए थे 2008 में, क्रिस्टोफर नोलन बैटमैन, तीनों 2008 रिलीज था, और जस्ट 7, 8, 9 के बाजू बाजू आई रिमेम्बर। और वो बहुत बड़ा एक्सपोजर था सबके लिए, क्योंकि सिनेमैटिक यूनिवर्स का, नॉट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, लाइक सिनेमा में कॉमिक्स का आई फील एंट्री तब हुआ है प्रॉपर। पहले भी थे बट इतना लेवल पे एक्सपोजर कि कॉमन लोग को भी अच्छा लगा। सुपर हीरो पहले लोग को ऐसा था कि हाँ सुपर हीरो है, 50% लोग को ऐसा है कि क्या सुपर हीरो, क्यों इतना सुपर पावर। तो आई डोंट नो, आई मीन मुझे वो डिफिकल्ट है रिलेट करना, बिकॉज आई वॉच्ड ऑल द ओल्ड बैटमैन मूवीज। उससे पहले पुराने वाले बिफोर आई ये आयरन मैन सब आया, तो उससे पहले मैंने सारे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एज द मिस्टर फ्रीज। मास एक्सेप्टेंस नहीं था ना जितना, हां मास एक्सेप्टेंस नहीं था, आई वुड से दैट इज देयर। मतलब फैंस जितने थे, फैन फॉलोइंग ये टाइम पे बड़ा, राइट। क्योंकि द थिंग इज उस टाइम पे ऑफ कोर्स बजट भी बहुत आ चुका था। पहले कॉमिक्स मूवी को उतना बजट नहीं मिलता था। आई रिमेम्बर बैटमैन को मिलता था बिकॉज बैटमैन वाज वेरी नोन, वेल नोन। मतलब डीसी बैटमैन लेके बैठा था, सुपरमैन था उनके पास। बट बैटमैन का स्टारकास्ट भी कितना ये वही था, सारे अच्छे स्टारकास्ट थे। बट स्पाइडरमैन कॉमिक्स में बहुत फेमस था, मूवी में उतना चला नहीं था, एंड सबसे पहले टोबी मैगवायर का ही चला मूवी स्पाइडरमैन में। बाकी सब उससे पहले भी आए थे बट इट वाज वेरी लो बजट, वेरी बैड, क्योंकि उस टाइम पे उतना फ्रीडम भी नहीं था, सीजी वाला फ्रीडम नहीं था कि तुम उड़ते हुए बताओ। Have you seen that old Hulk?
That green paint वाले। ग्रीन पेंट वाला बंदा, बाल and all, बस कोई रेसलर या किसी को स्ट्रॉन्ग उठा के को डाल पकड़ लिया था। Correct. उसमें थॉर वॉर भी आया था। हाँ, थॉर भी थॉर आया भी था, था। आयरन मैन भी था, वो Iron पूरा Man, हेलमेट हाँ। वेलमेट पहन के, लाइक टिपिकल आयरन मैन टाइप। बट वही उस टाइम पे उतना एक्सपोजर नहीं था, लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर पाए बिकॉज उन लोगों को फनी लग रहा था। इट वाज नॉट मोर ऑफ फनी था। फनी था उस हाँ। टाइम पे। करेक्ट। I think actually Batman is Christopher. No, I would say हाँ, Christopher Nolan Batman is the one where it actually he took क्रिस्टोफर it. नॉलन का ये मैंने नोटिस किया है, ही मेक्स थिंग्स वेरी रियलिस्टिक। तुम बिलीव कर लोगे कि ये है बंदा ऐसा कर सकता है। बाकियों का क्या था कि उसके पास गैजेट्स है एंड एवरीथिंग। क्रिस्टोफर नोलन ने ऐसा इंट्रोड्यूस किया ना कि ही इज अ मैन हु हैज मनी एंड ही मेड गैजेट्स, और बताया है पूरा, और सारे पॉसिबल गैजेट्स है। बाकी बैटमैन क्या कि उन लोग कॉमिक से डायरेक्टली उठा के बना दिए हैं, तो लोग को रियलिस्टिक नहीं लगा। क्रिस्टोफर नोलन मेड श्योर कि इट इज रियलिस्टिक, और वो उतना इन्वेस्ट करता था कि 90% वो रियली हो, बाकी थोड़ा 10% या 20% ही थोड़ा सीजी ग्राफिक्स टाइप हो। दैट्स व्हाई इट गॉट अ वाइडर एक्सेप्टेंस। उसके विलन्स भी काफी नेचुरल थे कि गैस वैस बताया जब उसको स्कैरक्रो को बताया एंड एवरीथिंग, इट वाज वेरी रियलिस्टिक। और वो फियर जो दिखाया उस सब में, इट वाज वेरी गुड। तो वो उसका क्रिस्टोफर नोलन, नो डाउट क्रेडिट गोज टू हिम फॉर दैट। Okay. But I think that is when people thought of comic books as a serious also in terms of movie universe, right? So that's obvious. Correct. Dark Because तब तक comic was like funny thing, right? कि मार डिशुम बूम बम era. So अभी coming to the cinematic world, जैसे अभी हम comic से सिनेमा में आए, coming to the cinema world जहाँ पे मार्वल काफी हाइट तक पहुंच गया। Like if you see, Endgame was the highest grossing movie ever. अब आफ्टर अवेटार को ओवरटेक करने का बहुत ट्राई किया, बट इट वाज द सेकंड। अवेटार फर्स्ट है, मार्वल का एवेंजर सेकंड है। बट उसके बाद उनका डाउनफॉल रहा है, दे आल्सो एक्सेप्टेड, बट नाउ दे आर ट्राइंग टू कम अप अगेन। सो डिस्कसिंग अबाउट सीक्रेट वॉर्स, डू यू थिंक कि मार्वल कैन जस्टिफाई Secret Wars, or Marvel can justify Doctor Doom coming, or Robert Jr. ka comeback as Doctor Doom? What do you think? Can they justify, or? I have counted them out in the first time Avengers, because I didn't think that these guys could be able to do Avengers well. The first Avenger. Actually, Loki. because I like the concept that so many superheroes at the same time, how will you give them screen space, screen time and all of those things? That at that time, I don't think anybody had done like that sort of assembling of all such a powerful set of characters within a storyline and giving justice to all of those characters, like giving enough screen time so that it doesn't feel like one of them is left off. Even Hawkeye and all of those guys, they did a good job. I think over time, they obviously weren't able to sustain it. Towards the end, I would say it became all weird, but there is nothing to say that they couldn't do the same thing again, because that is the only thing that I would say, like the whole, how can you give justice to every character and every वही चैलेंजिंग लग रहा है मुझे। क्या लगता है कि देखो, एवेंजर में देयर वर ओनली 5, इन्फिनिटी वॉर से पहले तो यह था एज ऑफ अल्ट्रॉन में देयर वर अराउंड व्हाट 10 आई गेस, 10 तो थे। इन्फिनिटी वॉर में और बढ़ गए, दे बिकेम अराउंड 15 और समथिंग। एंड गेम में देयर वर लाइक 22 और समथिंग। बट डिड यू थिंक एंड गेम वाज जस्टिफाइड कि सबको काइंड ऑफ मिला है? I mean even if it that much, उतना ही टाइम है उनके पास, so it's fine। जो भी किया वो लोगों ने, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे बेटर कितना कर हो सकता था। मे बी अभी हो भी सकता है, तो कितना ही बेटर वो लोग करते। जस्टिफाइड था, राइट, एवरीवन गॉट अ बिट ऑफ जस्टिफिकेशन एक्सेप्ट लाइक इवन like they completely ignored Captain Marvel till the end when she came in, and it was sort of like okay, thoda bahut overpower कर दिया, over नहीं, थोड़ा okay, at least some ज़्यादा डैमेज किया उसने। Right, even the Guardians को भी लेके आए, they were able to integrate them sort of okay, all the character, Drax है, Rocket है, and all of those guys, right? So they were able to do it. Secret Wars, I don't know how many characters Secret Wars will have. So Doomsday का ये आ चुका है cast, there are around 25 plus cast there also. उसमें Thor है, उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज है। तो व्हाट आई सी, इफ यू सी लाइक फैंटास्टिक फोर इज वन टीम, ओके, थंडरबोल्ट जो आया दैट इज वन टीम, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वन टीम, एक्समैन यूनिवर्स है वो भी आ रहा है, दैट इज वन टीम। देन कमिंग थॉर गया गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के पास, दे आर अ टीम। डॉक्टर स्ट्रेंज है,
बट वो भी गया है वांडा और उनके साथ आने वाला है, ही इज नॉट अलोन देयर आल्सो। इफ यू सी डॉक्टर स्ट्रेंज के लास्ट में वो मल्टीवर्स का वो बंदी भी आती है, फॉरगॉट हर नेम, वो उसको डैगर से पूरा हाँ यूनिवर्स हाँ, एक और कैरेक्टर को उन लोग ने इंट्रोड्यूस किया है। हैव यू सीन द डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी? या विद द लास्ट उसमें पोस्ट क्रेडिट में वो थर्ड आई वो लेके आता है, डोंट यू रिमेम्बर? वो एक बंदी आती है, डैगर से पूरा चार्लीज थियरन, वो बंदी, हाँ वो आके, हाँ, सो दे इंट्रोड्यूस वन मोर कैरेक्टर, तो उसका एक मूवी आ रहा है। सो डॉक्टर स्ट्रेंज इज प्लानिंग टू कम विद स्पाइडरमैन एंड हल्क टुगेदर। तो हल्क का जो स्पाइडरमैन का जो मूवी आ रहा है, नो वे होम नहीं, द ब्रांड न्यू वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड, स्पाइडरमैन का एक मूवी आ रहा है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। स्पाइडरमैन नहीं, दैट इज कैप्टन अमेरिका, राइट? हाँ, ब्रेव न्यू वर्ल्ड इज कैप्टन अमेरिका, अगेन कैप्टन अमेरिका इज अनदर टीम, वो भी अपना वो टीम बना रहा है, विंटर सोल्जर, और वो एक टीम बना रहा है, एंड स्पाइडरमैन, हल्क एंड डॉक्टर स्ट्रेंज, दे आर कमिंग टुगेदर। सो जो नेक्स्ट एवेंजर होने वाला है ना, डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ शैंग-ची भी आने वाला है ना, शैंग-ची भी आने वाला है। सो अभी क्या है कि ऑल टीम्स आर कमिंग टुगेदर। पहले ऐसा था कि एक एक इंडिविजुअल हीरो आ रहे थे, अभी है कि इंडिविजुअल टीम्स दे आर कमिंग टुगेदर। सो दे आर मेकिंग डॉक्टर डूम दैट पावरफुल कि थैनोस को तो यार 20 लोगों ने मार पाया, डॉक्टर डूम के अगेंस्ट इट इज लाइक अराउंड 10 different teams. Like there are around 25-30 He's characters. powerful than Thanos? हाँ, actually he beats up Thanos. He beats really up Thanos badly. very badly. वो भी with Infinity Stone Thanos को। हाँ, डॉक्टर डूम इज वेरी पावरफुल। मुझे लगता है अब तक दोनों मूवी ने जस्टिफाई नहीं किया है। जो पहला फैंटास्टिक फोर था और उसका रिबूट भी बना था, दोनों ने जस्टिफाई नहीं किया है। तो व्हाट आई सी इज कि इन लोग ने इन्फिनिटी वॉर एंड गेम जैसे लेके आ रहे हैं ना, वैसे ही अभी डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर को लेके आ रहे हैं। So Doomsday is when Doctor Doom will become very powerful. Like Doomsday में इसलिए इसका नाम ही Doomsday है। Infinity War में भी Thanos को एंड में सारे Infinity Stone मिल गए। That's why it is called Infinity War. And उसके बाद आया End Game. It's his end. तो सिमिलर ट्रेंड मैं यहाँ देख रहा हूँ कि Doomsday is when Doctor Doom will become very powerful. कॉमिक में और गेम में भी, मार्वल का एक गेम है, उसमें डॉक्टर डूम ने इसको मारा है, गैलेक्टस को। उतना पावरफुल है डॉक्टर डूम, मतलब ही हैज दैट मच। उसके पास सोल स्टोन भी आ जाता है, आई हैव सीन। और वो क्या करता है, जब सोल स्टोन आ जाता है ना, ही बिकम्स गॉड। वो अपना ग्रीन ड्रेस पूरा बदल के ही बिकम्स व्हाइट, एंड वो खुद का एक यूनिवर्स बनाता है। ओके, एंड वो यूनिवर्स ऐसा बनाता है जहां पे उसका राइट हैंड है डॉक्टर स्ट्रेंज, और वो रीड को जेल में डाल देता है, और सूजन और विक्टर, नहीं विक्टर नहीं, उसका नाम क्या है, फ्रैंकलिन को बीवी और बच्चा बना देता है। तो वो सबका माइंड भी चेंज कर लेता है कि ये कपल, ये फैमिली है, और डॉक्टर स्ट्रेंज उसके साथ है, एंड रीड इज द विलन। तो आई एम अज्यूमिंग दैट इज व्हाट द डूम्सडे एंड विल बी, कि डूम्सडे के एंड में ऐसा होगा कि डॉक्टर डूम विल बिकम वेरी पावरफुल, या तो स्टोन या कुछ और इन लोग लेके आएंगे, जहां पे ही विल बिकम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ दिस यूनिवर्स, और वो पूरा व्हाइट में ट्रांसफर हो जाता है। देयर इज अ आर्ट विच इज लीक्ड और रिलीज्ड बाय मार्वल, उसमें वो है, वो थ्रोन में बैठा है डॉक्टर डूम इन दी व्हाइट क्लोक, बाजू में इट इज इनविजिबल वुमन एंड फ्रैंकलिन, और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज पीछे खड़ा है, एंड सामने रीड इज इन दिस हथकड़ी। सो दे विल लीड अप टू दैट, एंड देन इट विल हैपन सीक्रेट वॉर। अब उन लोग ने सीक्रेट वॉर का कास्ट अब तक रिवील नहीं किया है, अब तक जो भी है इसका ही रिलीज किया है। मे बी देयर विल बी सम डेथ दैट इज हैपनिंग, एंड आई फील कि they have chose a very good actor. RDJ can justify Doctor Doom. Doctor Doom is a really good villain. Like कर पाएगा वो, मतलब क्योंकि एक वो आयरन मैन से फिर ये हाँ, so एक और फैन थियरी चल रहा है कि दिस डॉक्टर डूम इज एक्चुअली, पता है एक और कॉमिक आया था जहां पे डॉक्टर डूम और टोनी स्टार्क एक्सचेंज हो जाते हैं उस यूनिवर्स में, तो वो शायद यहाँ लेके आएंगे, इसलिए इन लोग ने आरडीजे को लिया है कि दिस इज टोनी स्टार्क, बट वो सोल उन लोगों का एक्सचेंज हो जाता है और समथिंग दैट हैपेंस, तो ही इज डॉक्टर डूम इन टोनी स्टार्क्स बॉडी, एंड दैट इज व्हाई ही लुक्स लाइक टोनी स्टार्क, एंड ही इज डॉक्टर डूम एक्चुअली इवेंचुअली, क्योंकि डॉक्टर डूम मर जाता है। एक और कंसेप्ट है, डॉक्टर डूम हेलमेट पहनता है, करेक्ट, क्योंकि उसका चेहरा जल जाता है, उतना नहीं जला होता एक्चुअली, कुछ स्क्रैचेस ही आए होते हैं, बट ही इज वेरी सिक्योर ऑफ हिज एक्सप्रेशन या उसका फेशियल दिस एंड ऑल, तो उतना भी ना दिखे बोल के वो मास्क पहनता है। बट ये जो स्पॉइलर अलर्ट, फैंटास्टिक फोर का स्पॉइलर है, एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन में उसको दिखाया है, आरडीजी को नहीं दिखाया, डॉक्टर डूम को दिखाया, बट उसके हाथ में हेलमेट है, उसने पहना नहीं है। सो देयर इज अ चांस कि डॉक्टर डूम ने टोनी स्टार्क का बॉडी ले लिया हो, या फिर उसका चेहरा क्लियर है इसलिए उसने हेलमेट हटाया है। बट आई हैव अ क्वेश्चन,
this Fantastic Four movie is not in the same universe it's not Earth 616 नहीं हाँ. Earth कौन सा दिखाया था, कुछ दिखाया था starting में 100 हाँ. something something. It's a different. But they've said that this is not Earth 116. This is not Earth 616. that उन लोग ने makes sense. क्लियरली जस्टिफाई किया है कि ये वो अर्थ नहीं है. और यहाँ पे भी मुझे चल आई कम बैक टू दिस. तो मुझे डॉक्टर डूम का वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एंड आरडीजे कैन जस्टिफाई. तो फैंटास्टिक फोर में इन लोग ने ऐसा दिखाया है कि दिस इज इन सेटअप इन 60s 70s. ओके, उस टाइम का दिखाया है एंड दे हैव नॉट टेक्निकली एडवांस्ड, मतलब टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड. उनके वहां पे ये नहीं ज्यादा हुआ है, क्या बोलते हैं, डिजिटल. They don't have smartphones. They don't have TV. मतलब वो पुराना एनालॉग टीवी था, स्क्रीन भी एनालॉग वाले स्क्रीन्स थे. But they have flying cars. They have rocket and all with. So maybe उन लोग ने ऐसा दिखाया है कि जहाँ पे एटॉमिक या न्यूक्लियर एक्सपेंशन अच्छे से हुआ है, बट नॉट डिजिटल एक्सपेंशन, which I liked it. The take they took it very nicely. तो जो भी है रिकॉर्ड सब वो कैसेट टेप्स है या विनाइल रिकॉर्ड है, वैसे सब बताया. वेरी वेल टेकन. वहां पे वो बहुत अच्छा दिखाया. डिजिटल कुछ भी नहीं है. ही इज राइटिंग इन चॉक बोर्ड नॉर्मल, ना कि वो स्मार्ट टीवी भी नहीं है या वो व्हाइट बोर्ड भी नहीं है, प्रॉपर ब्लैक बोर्ड एंड व्हाइट चॉक. तो वैसा दिखा है. सो दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट हियर इन दिस फैंटास्टिक फोर मूवी. मोर देन फैंटास्टिक फोर, इट वाज अ फ्रैंकलिन ओरिजिन स्टोरी. कि लाइक व्हाई फ्रैंकलिन इज सो पावरफुल, एंड व्हाई भी नहीं है, व्हाई नहीं जस्टिफाई किया है, बट देयर इज समवन हु इज पावरफुल. ओके, क्योंकि अब तक कोई भी एमसीयू में फ्रैंकलिन का डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, ना ही फैंटास्टिक फोर के दोनों मूवी में है. तो दिस वाज जस्ट एन इंट्रो फॉर फ्रैंकलिन, क्योंकि वो उनका बच्चा है तो फैंटास्टिक फोर को भी लेके आना पड़ा. इसमें इफ यू सी दिस मूवी, आई एम नॉट जस्टिफाइंग द मूवी, कोई एक्शन सीन नहीं है, वेरी लेस. इट वाज मोर ऑफ अ ड्रामा ओनली. खाली एंड में यू नो रीड का सबसे बड़ा इलास्टिक वो वाला है ना, पूरे 2 घंटे के मूवी में हार्डली देयर विल बी 10 सेकंड्स. स्टार्टिंग में थोड़ा फाइट वाला उनका इंट्रो दिखाया और एंड में फाइट. दैट्स इट. थिंग तो पूरे मूवी में थिंग था. मेजरली जो कैप्चर किया वो जॉनी ब्लेज का वो फायर है, वो काफी जगह फायर बन के घूमा है. एंड एंड में ही इनविजिबल वुमन का वो शील्डिंग वाला पावर दिखाया है. स्टार्टिंग में भी थोड़ा दिखा है वो इंट्रो. तो दिस इज मोर ऑफ अ ड्रामा एंड द बर्थ ऑफ फ्रैंकलिन. व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, क्यों ये पावरफुल है कि नहीं, या कौन है, मोर देन क्यों, कौन. एंड गैलेक्टस आके लाइक फ्रैंकलिन को लेने आता है. सो वो पावर दिखाने के लिए कि दैट बच्चा इज वेरी पावरफुल. सो दैट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ दिस मूवी. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. और आप भी हमारे जैसे एक फैन हो या आपको कुछ टॉपिक पे डिस्कस करना हो, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. आप जो भी टॉपिक के बारे में लिखेंगे हम डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट इट इन द अपकमिंग वीडियोस. एंड आप भी हमारे जैसे एक बहुत बड़े फैन हो तो आपके पास भी एक मौका है हमारे साथ आके बात करने का. सो प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.